قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دور قرآن 2021 میں استقبال کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم ہماری آج کی نشست شروع کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعوت دیتی ہوں اسما ندیم کو تلاوت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 to 3 تک کی تلاوت کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عافیت عطا فرمائے اور آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اب دوسری ہمارے سیشن پہ چلتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری ٹیچر روزی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم لوگ ابھی سورہ بنی اسرائیل میں پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، تو تھوڑا سا پہلے ہم لوگ اس سورہ کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل یہ قرآن کی 17 نمبر سورہ ہے۔ یہ سورہ شروع ہوا تسبیح سے اور مکمل ہوتا ہے حمد سے، اللہ کا تسبیح سے، سبحان الذی، اللہ کا تسبیح سے یہ سورہ شروع ہوا اور آخر میں حمد کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہوتے ہیں۔ یہ سورہ میں بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ کچھ نصیحت والی باتیں سنا کر ہوشیار کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، چیتاونی دی گئی ہے، اسی لیے یہ سورہ کا نام بنی اسرائیل۔ اور سورہ کی سٹارٹنگ آیت میں، پہلے آیت میں اسرا معراج کا بیان ہے، اسی لیے یہ سورہ کا دوسرا اور ایک نام بھی ہے، سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ میں 111 آیات ہے اور 12 رکوع ہے۔
सूरा में सिजदा का आयत भी है। ये सूरा कब नाजिल हुआ? मक्की दौर का बिल्कुल आखिर हिस्सा में ये सूरा नाजिल हुई। मक्की दौर यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद जितना साल मक्का में रहे उसे मक्की दौर कहते हैं। ये कितने साल? मक्की दौर 13 साल का। तो ये सूरा मक्की दौर का बिल्कुल आखिर हिस्सा में नाजिल हुई थी। और ये सूरा में बल्कि हिजरत के तरफ इशारा भी है और हिजरत के लिए दुआ भी सिखाई गई है, जो आयत नंबर 80 में है। और आयत नंबर 80 में जो दुआ है वो हम लोग मतलब जब कोई जगह जाते हैं सफर के टाइम हम भी वो दुआ पढ़ सकते हैं। आयत नंबर 80 में है, मीनिंग पढ़ने से हमें मालूम हो जाएगा। तो तब तक मक्की दौर का आखिर हिस्सा में नाजिल हुई, तो तब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत का 10-12 साल बीत चुके थे। विरोध करने वालों के रुकावटें के बावजूद, उन लोगों का खिलाफ करने के बावजूद इस्लामी दावत अरब के कोने कोने में पहुंच गई थी। अब वक्त आ गए हैं, अब वक्त करीब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जाएं और ईमान वालों के एक साथ समेटे एंड एस्टैब्लिश अ स्टेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। ये सूरा का जो मेन टॉपिक क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। बेसिक थीम क्या है, मेन टॉपिक किस पर ज्यादातर बात है। प्रैक्टिकली ये सूरा, दिस सूरा इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वार्निंग, एडमोनिशन एंड इंस्ट्रक्शन which have been blended together in a balanced proportion। ये सूरा में चेतावनी, होशियारी, खबरदारी भी है, समझाना बुझाना है और सबक के जरिए अमली पहलू भी है। चेतावनी में क्या है, होशियारी में क्या है, जो वार्निंग कि मक्का के इनकार करने वालों को चेतावनी दी गई। क्या चेतावनी? कि बनी इस्राइल और दूसरे कौमों से सबक लो और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दे रहे हैं इसे कबूल कर लो, वरना मिटा दिया जाओगे, बिल्कुल मिट जाओगे। और साथ में बनी इस्राइल को भी चेतावनी दी गई है। और समझाना बुझाना इसमें क्या है, ये बहुत बड़े दिलनशीन तरीके से बताया गया है कि इंसान की किस्मत, इंसान की कामयाबी किस चीज पर डिपेंडेंट है। और तौहीद, अखरात, रिसालत, कुरान ये जो हक सच होने का सबूत भी दिए गए हैं। और बड़े बड़े उसूल बयान किए गए हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत में भी यही सारे उसूल था। तो और इन सब बातों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि ये जो मुश्किल हालात हैं, इस हालात में मजबूती के साथ आप अपने तरीके पर जमे रहे और इनकार करने वालों के साथ समझौते के बारे में ख्याल तक ना करें। और हम लोग ये सूरा में है, थोड़ा सा रुकू वाइज हम देख लेते हैं कौन कौन रुकू में मेनली क्या चीज है, फिर हम लोग तर्जुमा पर तफसीर में जाएंगे। फर्स्ट रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा और मिराज और उस इलाका का हिस्ट्री है फर्स्ट रुकू में। सेकेंड रुकू में ये बताया गया है कि इंसान बड़ा ही जल्दबाज, उतावला है। बुराई और भलाई, अजर और अजाब, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है, लेकिन इंसान जल्दबाजी करते हैं। थर्ड रुकू में ये बात है कि कुछ मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का बयान हुए हैं। एक अल्लाह का इबादत करने का हुक्म है, पेरेंट्स के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म है, और ये थर्ड रुकू में पेरेंट्स के लिए दुआ करने का भी हुक्म दिया गया है। फोर्थ रुकू में भी वही कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स बयान हुए हैं, जो चिल्ड्रंस के राइट्स, डिसेंसी, ये सारे हैं। फिफ्थ रुकू में कुरान का बेसिक मैसेज क्या है, तौहीद। अगर अल्लाह के साथ दूसरा माबूद होते तो जरूर वो दूसरा माबूद अब तक अर्श के मालिक यानी अल्लाह के तरफ रास्ता तलाश लेते, जैसे कि एक राजा दूसरा राजा पर जीत हासिल कर लेता है। सिक्स्थ रुकू में क्या है, जेंटलनेस के बारे में है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात अपने मुंह से निकाला करे। सिक्स्थ रुकू में इसी तरह है। सेवेंथ रुकू में क्या है कि शैतान का तकब्बुर
इंसान के मुकाबले में शैतान का जो तकब्बुर एंड हिज प्लेज टू मिसलीड ह्यूमन बीइंग्स, शैतान ने जो वादा किया था मिसलीड करने का। 8th रुकू में आखिरत के दिन हर शख्स अपने अमलनामा के साथ होंगे। 9th रुकू में नमाज और कुरान तिलावत का जो वैल्यू इम्पोर्टेंस वो बताए गए हैं कि नमाज कायम करे सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर का कुरान पढ़ना भी। बेशक फजर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया, ये इसी तरह बात है। और ये भी मालूम होता है कि ये फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका है जब 5 वक्त की नमाज वक्त के पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। 10th रुकू में क्या है? 10th रुकू में बताया गया द कुरान इज इनइमिटेबल, कुरान अनोखी है। इस कुरान को, ये कुरान सच्चाई के साथ उतारा गया और कुरान सच के साथ ही उतरा। कोई कुरान जैसा और कुछ आयत कोई नहीं ला सकता। 11th रुकू में नॉन बिलीवर्स हैव लेम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टिंग द प्रॉफिट्स। क्या है? 11th रुकू में बताया गया कि लोगों के पास हक, हिदायत पहुंचने के बाद वो ईमान नहीं लाते। क्या आर्गुमेंट देते हैं, क्या आर्गू करते हैं कि रसूल, अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा। ये बहुत लेम आर्गुमेंट, ये बहुत बेसलेस लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। और 12th रुकू में आखिर जो 12th रुकू में क्या बताया गया? 12th रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ फिरौन का जो एटीट्यूड, वो उसका बयान है और फिरौन का अंजाम भी बताया गया है। और आखिर में, सूरा के आखिर में 105 आयत से लेकर 111 आयत तक ये हुक्म दिए गए हैं कि अल्लाह को कैसे पुकारा जाए, अल्लाह के हमद कैसे किया जाए, वो सिखाया गया है। तो ये है सूरा। हम लोग थोड़ा सूरा के तरफ चलते हैं। सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक है वो जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकतें अता कर रखी हैं, इसीलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के कुछ जलवे दिखाए। बेशक अल्लाह ही अच्छे तरह सुनने देखने वाला है। थोड़ा सा ये आयत को समझ लेता है, क्योंकि ये फर्स्ट आयत में इसरा मिराज के बारे में बात है, फिर और कुछ बात नहीं, तुरंत बनी इसराइल की तरफ सेकंड आयत से चले जाते हैं। तो ये शुरुआती आयत में मिराज का वाकया का जिक्र है। मिराज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफर। मिराज एक अनोखा मुजेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और जबकि रातों रात ये सफर बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, तो किसी को यकीन नहीं हो सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में सुभाना कहा गया। सुभाना यानी पाक है अल्लाह। अल्लाह के लिए कोई चीज करना नामुमकिन नहीं है। जब हम कोई अनोखी चीज सुनते हैं या देखते हैं तो यही बताते हैं ना, सुभान अल्लाह, सच में ऐसा है। तो इसीलिए ये सुभान अल्लाजी से आया सूरा शुरू हुआ है। असरा का माने क्या है? असरा का माने है रातों रात सफर। रातों रात सफर को असरा कहते हैं। जबकि ये सफर, मिराज का सफर रातों रात हुआ था। बी आबदिही, आबदिही क्यों बताया गया? क्योंकि किसी को ख्याल में आते हैं ये आसमान का सफर ये बहुत ही अजीब अनोखा है, शायद ये फिजिकली नहीं हुआ था, शायद ये ख्वाब में था। तो इसीलिए अल्लाह ने आयत में फरमा दिया बी आबदिही, यानी ये सफर बंदा को कराया था, अपने बंदे को रातों रात ये सफर कराया था। तो एक बंदा यानी एक इंसान का जिस्म भी होता है, रूह भी होता है। तो ये सफर जिस्म और रूह के साथ हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने ये आयत में आब्द वर्ड यूज किया है। यानी एक बंदा का रूह भी होता है, जिस्म भी होता है, यानी ये सफर जिस्मानी था। फिर मस्जिदुल हराम अक्सा का माने क्या है? दूर को कहते हैं। जबकि मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा बैतुल मुकद्दस बहुत दूर का सफर है,
इसे इसीलिए अक्सा कहा गया है। जो मस्जिद अल हराम से लेकर मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दिस का जो सफर उसे इसरा कहते हैं। जो बाई रोड जो जमीन का सफर इसे इसरा कहते हैं। फिर वहां से आसमान तक जो सफर उसे मेराज कहते हैं। मेराज यानी उरूज, जो ऊपर चढ़ना। तो बैतुल मुकद्दस से जो आसमान का सफर उसे मेराज कहते हैं। तो फिर अल्लाह ने क्या बताया कि बाराकना, बरकत वाला किया अल्लाह ने। बरकत कैसे है कि दीनी इतबार से वो इलाका हाउलाहू, उस इलाका सीरिया, उस इलाका अल्लाह ने बरकत वाला बनाया है। बरकत दीनी इतबार से क्या बरकत कि ये पैगंबरों का किबला, और बहुत सारे पैगंबर वहाँ बसर किए हैं, बहुत सारे पैगंबरों का दाफन भी है। और दुनियाई इतबार से क्या बरकत है कि ये जमीन में बहुत सारे नदी, चश्मा और फलों का बागात भी है। तो ये बरकत हुआ। फिर और क्या है इसमें समझने का, अल्लाह ने ये सफर क्यों कराया ये सफर, ली नूरियाहू मिन आयातिना, ताकि हम दिखाए उसे हमारे आयाते यानी निशानियां। नबी रसूल होता है नजीर और बशीर, खबरदार करने वाला और खुशखबर देने वाला। खबरदार किस बात की, जहन्नम की डरावनी से। तो जहन्नम कैसा है, अगर वो अपना आंखों से देख ले तब आइनुल यकीन के साथ लोगों को खबरदार कर सकते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने ये सफर कराया। इसी तरह जन्नत का खुशी, जन्नत का नेमत कैसा है, अगर अपना आंखों में देख ले तो आंखों देखी यकीन के साथ लोगों को जन्नत का खुशखबरी दे सकते हैं। जबकि नबी रसूल को जन्नत जहन्नम का जो खुशखबरी और जो तकलीफ ये बताना होता है, तो अगर अपना आंखों में देख ले तो अच्छा से बयान कर सकते, लोगों को प्रॉपर्ली समझा सकते। इसीलिए अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आसमान का सफर कराया और तमाम चीजें को दिखाया था। और ये आयत का आखिर में अल्लाह का दो नाम का, सिफ्ती नाम का भी जिक्र है कि समीउल बसीर। चलते हैं हम आयत नंबर 2। और हमने मूसा को किताब अता की और उसे इसराइल की औलाद के लिए, बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवाय किसी दूसरे को कारसाज ना बनाना। कारसाज यानी वकील किसे कहते हैं, मेरे तरफ से मेरा काम जो कर देते हैं। तो मेरे तरफ से मेरा काम करने के लिए हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से। तो यहाँ अल्लाह बोल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा और किसी से ना मांगा जाए, अल्लाह के सिवा और किसी को वकील ना बनाना जाए। आयत नंबर 3, ये उन लोगों की औलाद, किनकी औलाद, जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था, वो हमारा बहुत शुक्रगुजार बंदा था। तो नूह का औलाद, नूह शुक्रगुजार था तो तुम उसका औलाद हो, तुम्हें भी शुक्रगुजार बनना चाहिए। और हमने बनी इसराइल के लिए उनकी किताब में वाजे फैसला कर दिया था कि तुम जमीन पर 2 बार फसाद पैदा करोगे और तुम बहुत जुल्म करोगे। इन दोनों वादों में से पहले की आते ही हमने तुम्हारे सामने अपने बंदों को उठा खड़ा किया जो बड़े लड़ाकू थे। फिर वो तुम्हारे घरों के अंदर तक फैल गए और अल्लाह का वादा पूरा होना ही था। फिर हमने उन पर तुम्हारा गलबा देकर तुम्हारा दीन फेर दिया और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला कर दिया। यहाँ देखो 2 बार फसाद बताया है। 2 बार फसाद क्या है, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत उसका विरोध करके, और एक बार ईसा अलैहिस्सलाम का जो शरीयत उसका विरोध करके। ये 2 बार विरोध करने का बात बताया गया है। और दोनों बार ही उन लोग जब तौबा की तो फिर से नियामतों से नवाजा गया था। आयत नंबर 7, अगर तुमने अच्छे काम किए तो खुद अपने फायदे के लिए, और अगर तुमने बुराइयां की तो भी खुद अपने ही के लिए। फिर जब दूसरा वादा आया तो हमने दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारा मुंह बिगाड़ दे और पहले बार की तरह फिर उसी मस्जिद में घुस जाएं और जिस चीज पर काबू पाए तोड़ फोड़ कर जड़ से उखाड़ दे। अल्लाह रहम करे।
इस आयत में देखो क्या है, इन अहसन तुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा, यानी अगर तुम अच्छे काम करो, एहसान करो, तो एहसान किसके लिए? अपना के लिए। अगर तुम बुराइयां करो तो वो भी, क्योंकि हर चीजें का बदला हमें खुद को मिलेगा। अगर हमने किसी पर एहसान की तो नेकी की, और वो नेकी का बदला अल्लाह हमें बड़ा चढ़ा कर देगा। नेकी का बदला अच्छा है, अजर होता है। तो अगर हमने एहसान की तो समझो कि वो अपने पर ही की। अगर जुल्म की, हम समझते हैं कि हम दूसरे को खूब सताया, उसको बहुत तकलीफ दी, अरे वो तकलीफ दी तो गुनाह हुआ, उस गुनाह का अजाब बाद में तो खुद को भुगतना पड़ेगा। तो जो एहसान या जो गुनाह करते हैं, समझो कि तमाम काम का बदला, अमल का बदला खुद पर आएगा। अल्लाह ने कितना क्लियरली, कितना अच्छा सीधी लैंग्वेज में बता दिया है। और यहाँ जो बात बताया गया है, ये भी नसीहत के लिए यहाँ बनी इसराइल का 2 हादसा के तरफ यह आयत में इशारा है। वो हादसा क्या है कि बाबेल का बादशाह नाम था बुख्ता नसर बैतुल मुकद्दस पर हमला किए थे और वो बर्बाद कर दिए थे, बहुत पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो यहूद को भी 70 साल 70 ईयर्स करीब बहुत ही जिल्लत के साथ रहना पड़ा, बाबेल में उधारी जाकर रहना पड़ा। फिर ईरान का बादशाह बाबेल पर कब्जा कर लिया था। फिर यहूद को वो सीरिया वापस किए थे। जो ईरान का बादशाह, यहूद ने तौबा करके ईरान के बादशाह के मदद से मस्जिद अक्सा को फिर से रिबिल्ड किया था। यह बुख्ता नसर का एक बार हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान में उठा लिया गया था, उसका भी 40 इयर्स करीब बाद में हुआ था। इस बार क्या हुआ था? उस टाइम तो बुख्ता नसर किया था, और इस बार रूमियों ने मस्जिद को बर्बाद की। उस वक्त बादशाह था तायतोस नाम, ये मैंने मारिफुल कुरान में पढ़ी हूँ, हो सकता है अलग अलग रिवायत में थोड़ा बहुत चेंज है, मारिफुल कुरान में ये नाम है। फिर ये रूमियों ने किया था। फिर यानी ये जो दोनों हादसा के बारे में बात है यहाँ, तो क्या है? एक है मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत का जब विरोध किया था, और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम के शरीयत का जो विरोध किया था। तो यहाँ हमारे लिए सबक क्या है? हमारे लिए सबक क्या है कि अगर हम गुमराह हुए तो इसी तरह अजाब हो सकते हैं। दूसरे के तहत जिल्लत के साथ रहना पड़ सकते हैं, तो हम अलर्ट हो जाए, खुद को सुधार ले। आयत नंबर 8, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। हाँ, अगर तुम फिर भी वही करने लगो तो हम भी फिर ऐसा ही करेंगे। और हमने नकारने वालों के लिए कैद खाना जहन्नम को बना रखा है। अगर यहाँ नकारने वालों के लिए है, किन के लिए? जो डिनाई करते हैं, इनकार करने वालों के लिए कैद खाना बनाया। कौन सा? जहन्नम। बेशक यह कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। क्या बताया? इन्ना हाज़ल कुरानु यहदी लिल्लती हिया अक़वाम। यह कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और ईमानदार नेकों को जो नेकी के काम करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि उसके लिए बहुत अच्छा अजर है। सुभान अल्लाह। हमें लगता है कुरान इतना हार्ड है, समझने में मुश्किल है, अमल करना मुश्किल है, लेकिन कुरान के बारे में क्या बता रहे हैं? कुरान क्या बता रहे हैं? ये बहुत सीधा है और खुशखबरी देता है किन्हें? ईमानदार नेकों को, जो नेकी के काम करते हैं, उसके लिए क्या है? अजर है। अजर क्या होता है? एक है जजा का माने होता है बदला, यानी अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा बदला मिलेगा। और अजर हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे कि अवार्ड। तो यहाँ अल्लाह ने खुशखबरी दिया और कुरान के बारे में भी बताया। जबकि स्टार्टिंग आयत नंबर 1 में रसूल मिराज के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत की, अल्लाह ने रसूल को मुजेजा दिया, यानी उन्होंने अल्लाह का रसूल, ये बात फर्स्ट आयत में बताया गया था। आयत नंबर 9 में ये कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुजेजा
ये भी बताया गया, और ये कुरान बहुत सीधा है, अल्लाह ने बता रहे हैं, तो हमें कुरान समझने, सीखने और अमल करने में डरना नहीं चाहिए। और वो लोग जो आखिरत पर यकीन, अजर का माने होता है जैसे कि अवार्ड, रिवार्ड, इसी तरह जज़ा, कुरान में बार बार है ना, एक जज़ा मिलेगा, एक अजर मिलेगा। जज़ा का माने होता है बदला, अच्छा किया तो अच्छा बदला, बुरा किया तो तकलीफ होगा। हाँ, और अजर का माने होता है जो अच्छा बदला, हमेशा ही अच्छा, जैसे अवार्ड मिलेगा, अवार्ड को भी नेगेटिव नहीं होता ना, इसी तरह। फिर और बेशक, और वो लोग जो, आयत नंबर 10, और वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं करते, उनके लिए हमने दुखदे अजाब तैयार कर रखा है। और ईमान और इंसान बुराई की दुआएं करने लगता है, बिल्कुल उसकी अपनी भलाई की दुआओं की तरह इंसान बड़ा ही उतावला है। ये हम लोगों ने पिछले सूरा में भी पढ़े हैं कि भलाई से पहले बुराई चाहते हैं, यानी दुआ जो चाहता है इमीडिएट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। है, बच्चे पर भी गुस्सा हो जाता है, बच्चे को भी कितना बददुआ कर देते हैं, लगता है अभी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह इंसान को जानते हैं, तो इंसान बहुत ही उतावला है, बहुत ही जल्दबाज है हर चीजें में। नेक्स्ट आयत, और हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानी बनाए है। दिन और रात को अल्लाह ने क्या बनाया? अल्लाह का कुदरत की निशानी। रात की निशानी को हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन दिखाने वाली बनाया है। क्यों? नंबर 1, ताकि तुम अपने रब की फजल की खोज कर सको, और नंबर 2 कि सालों का गिनती और हिसाब जान सको। और हर चीज का हमने तफसीली बयान कर दिया है, और हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले डाल दिया है, और क़यामत के दिन हम उसके नामा अमल को निकालेंगे, जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पा लेगा। लो, खुद ही अपना अमल नामा आप पढ़ लो, आज तो तू आप ही अपना खुद फैसला करने को काफी है। बहुत ही डराने वाला आयत है। अब गले में डाला दिया जाएगा अमलनामा, और अपना अमलनामा अपना आप ही पढ़ना होगा। उस दिन जो लिखा पढ़ा नहीं जानते हैं, जो इलिटरेट, वो भी पढ़ पाएगा अपना अपना अमलनामा। तो आज हमारे लिए कोई कुछ बुरा बोले, कुछ हम जो हो वो ही बोले, तो हम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है ना। अगर नेगेटिव कुछ भी बोले तो हमें अजीब सा लगता है सुनने में, अरे मैं ये हूँ, और उसी दिन अपना अमलनामा अपना आप पढ़ेंगे। अल्लाह ने ये खबर कर दिया है, तो किरामन कातिबिन हमेशा एक्टिव है। हमें वो कॉन्शियस होना है, ये आयत पढ़ते वक्त हमें बहुत अलर्ट हो जाना है, कॉन्शियस होना है, खबरदार हो जाना है कि हमारा अमलनामा हमारा गले में लटके हुए है, किरामान कातिबिन लिख रहे हैं, और वो अमलनामा हम खुद पढ़ेंगे। तो अपना किताब खुद लिख रहे हैं, तो उस मुताबिक हम अमल भी करें। अल्लाह हमें जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल करने का तौफीक अता फरमाए, आमीन। जो हिदायत हासिल करता है वो खुद अपने भले के लिए हिदायत हासिल करता है, और जो गुमराह हो जाए उसका बोझ उसी के ऊपर है। कोई बोझ वाला किसी दूसरे का बोझ अपने ऊपर ना लादेगा। वाला तजीरु वजीरातु विज़रा उखरा, या ये आयत भी हम लोग पिछले टाइम पढ़ चुके हैं। हमारा नियम है नहीं है कि रसूल भेजने से पहले ही आजाब भेजे, यानी अल्लाह रसूल भेज के मैसेंजर से मैसेज दे देते हैं कि ऑल दिस थिंग्स यू शुड डू, और कौन सा चीज अवॉइड करना है अल्लाह ने बता देते हैं, बिना विदाउट एनी अलर्ट करने से पहले अजाब नहीं देते। तो हमारे पास रसूल आ चुके हैं, किताब हमारे लिए किताब नाजिल हो चुके हैं। ईच एंड एवरी रीजनल लैंग्वेज में किताब का तफसीर तर्जुमा बन चुके हैं। तो हमारे लिए कोई उज़र, कोई बहाना और बाकी नहीं है। तो हमें अभी कुरान सीखना, समझना, उस पर अमल करने का टाइम आ ही गए हैं। और जब हम किसी बस्ती के हलाक करने का इरादा कर लेते हैं, तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं, और वो उस बस्ती के वाजे तौर से नाफरमानी करने लगते हैं, तो उन पर अजाब का फैसला लागू हो जाता है, और फिर हम उसे उलट पलट कर देते हैं। यहाँ देखो, जो इससे पिछले आयत में क्या बोला कि रसूल भेजते हैं अल्लाह। रसूल भेजने के बाद भी रसूल को इनकार करे तो अल्लाह का तरीका क्या है कि जो माशरा का जो बड़े सरदार जैसा लोग, उन लोग पहले
पहले गुमराह होते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को ही आम लोग फॉलो करते हैं, फिर टोटली वो माशरा गुमराह हो जाता है और अल्लाह का अजाब का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन अल्लाह क्यों चाहता है? क्योंकि वो रसूल को इनकार किया था, अल्लाह ने रसूल के जरिए खबर कर दिया था। आयत नंबर 17, और हमने नूह के बाद भी बहुत से समुदाय नष्ट किए, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाह से अच्छी तरह वाकिफ और अच्छी तरह देखने वाला है, जिसकी तमन्ना सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया की ही हो, उसे हम यहाँ जितना जिसके लिए चाहे जल्दी से अता कर देते हैं। आखिर में उसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वो बहरहाल धिक्कारा हुआ दाखिल होगा। और जिसकी तमन्ना आखिरात की हो और जैसे कोशिश होनी चाहिए वो करता भी हो, और वो ईमान के साथ भी हो, फिर तो वही लोग हैं जिनकी कोशिश को अल्लाह के यहाँ पूरा इज्जत किया जाएगा, पूरा मशकूर होगा उसका। यहाँ देखो दो आयत नंबर 18 और 19 में दो किरदार का इंसान है। एक का तमन्ना क्या है? एक का तमन्ना है आजिला और दूसरे का तमन्ना है आखिरा। जो इस दुनिया का तमन्ना करते हैं अल्लाह उससे देता है। कितना देता है? अल्लाह के मर्जी के मुताबिक। ऐसा नहीं हो जितना चाहा उतना ही दे देते हैं, अल्लाह जितना चाहता है उतना देते हैं। लेकिन आखिरात दुनिया का तमन्ना, सिर्फ दुनिया का तमन्ना करने के लिए आखिरात से वो महरूम हो जाता है। यह हम सूरा बकरा आयत नंबर 200 में भी पढ़ के आए हैं कि फिर इसके बरखिलाफ ऑन द अदर हैंड जिन लोग आखिरात का तमन्ना करता है, सायाब यानी कोशिश करते हैं। सिर्फ तमन्ना से नहीं होता, तमन्ना है फिर कोशिश है, और वो कोशिश कैसे? वो भी ईमान के साथ होना है। कोशिश क्या होता है? नेक अमल ईमान के साथ हो। ऐसा ही अपना मनगढ़ंत ये मुझे अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है, ये भी बेनिफिशियल है, ये काम हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तरीका भी सुन्नत और ईमान के साथ, तब अल्लाह के वहाँ उसका ये कोशिश ईमान के साथ जो कोशिश आखिरात के लिए वो अल्लाह के वहाँ मशकूर होगा। ये खबर अल्लाह ने इस आयत में हमें दे दिया है। तो यहाँ से हमें करने का काम क्या है कि हम तमन्ना आखिरात का रखें और ईमान अपनाएं, और ईमान के साथ नेक अमल जरूर करें। नेक अमल तब काबिले कबूल होगा जब वो ईमान के साथ हो, सुन्नत तरीका के मुताबिक हो। आयत नंबर 20, हर एक को हम देते हैं इन्हें भी और उन्हें भी तेरे रब का इनाम में से, और तेरे रब का उपकार रुका हुआ नहीं है। देख ले उनमें एक को एक पर किस तरह फजीलत अता कर रखी है, और अखरात तो दर्जे के इतबार से बहुत बेहतर है और फजीलत के इतबार से भी बहुत बेहतर है। अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बना कि आखिर में तू निश्चित बेमदद कर होकर बैठ रहेगा। और तेरा रब खुला हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवाय किसी दूसरे की इबादत ना करना और माता पिता के साथ अच्छा सुलूक करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या ये दोनों बुढ़ापे में को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहना, उन्हें डांटना नहीं बल्कि उनके साथ इज्जत और एहतराम से बातचीत करना। यहाँ देखो पिछले आयत में किया था ईमान के साथ नेक अमल। तो नेक अमल में अभी कुछ आयत है, आई थिंक 38 तक है, कुछ नेक अमल के बारे में ही बात है। तो सबसे पहले क्या है? अल्लाह के सिवाय और किसी को इबादत में शरीक ना करना, यानी सबसे पहले तौहीद इख्तियार करो। अल्लाह का हक हो गया, फिर बंदों का हक। बंदों का हक में सबसे पहले क्या बताया है? वालिदैन। क्योंकि दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लेकिन दुनिया में आने का जरिया पेरेंट्स है और वालिदैन है। तो अल्लाह के बाद ही तुरंत वालिदैन का हक सेम आयत में अल्लाह ने बताया। और यहाँ क्या बताया? देखो पहले दो नहीं करने का, बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनके उफ ना कहना, डांटना नहीं, और करने का क्या? एहतराम, इज्जत एहतराम से बातचीत करना, यानी टू मच टेक केयर करने के लिए बताया गया है। और नरमी और मोहब्बत के साथ उनके सामने इनकिसारी के हाथ फैलाए रखना और दुआ करते रहना कि ये मेरे रब इन पर ऐसे ही रहम करना जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मेरा पालने पोसने में किया है। यानी यहाँ भी एक वर्ड है जनाहा, यानी
पक्षी चिड़िया अपने बच्चों को जब अपना पंखों में ढांप लेता है मोहब्बत से, इसी तरह पेरेंट्स के वालिदैन के लिए बताया, इसी तरह नरमी के साथ पेरेंट्स के साथ सुलूक करो। और ये पेरेंट्स के लिए दुआ, वालिदैन के लिए दुआ, ये आयत में है, आयत नंबर 24 में, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये हम पेरेंट्स के लिए हमें पढ़ना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक हो तो वो तौबा करने वालों को माफ करने वाला है। और रिश्तेदारों को, फिर एक एक करके, पहले अल्लाह का हक हो गया, अभी बंदों का हक, और रिश्तेदारों को और गरीबों को और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो और फजूल खर्चा ना करो। हक अदा करो बताया गया, यानी ऐसा मत सोचो कि मैंने दिया है, बल्कि उसका हक है हमारा माल पर, तो हम जब दे रहे हैं तो हक अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम एहसान कर रहे हैं, उसका हक हम अदा कर रहे हैं। और फजूल खर्चा में माना किया गया है। फजूल खर्चे करने वाले शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। कुरान में ये खर्चे के बारे में एक तबजीर और इसराफ, दो वर्ड है। तबजीर जो है वो गुनाह के काम में, या बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं उसी पर्पस में जो खर्चा होता है वो तबजीर। और इसराफ क्या है कि जरूरत के, वो खर्चा करने का जरूरत है बट इतना ज्यादा इससे कम करने से भी वो जरूरत पूरा हो जाता था। हाँ, तो ये यहाँ बताया गया जो तबजीर करते हैं, जो फजूल खर्चा करते हैं, और शैतान का भाई बताया गया है। तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना है खर्चा करने के बारे में। और अगर तुझे उनसे मुंह फेर लेना पड़े अपने रब की इस रहमत की खोज में जिसकी तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि अच्छी तरह और नरमी से उन्हें समझा दे। अगर देने के लिए, जो मुसाफिर या जो पिछले आयतों में बताया गया, गरीबों को देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, अगर अल्लाह देंगे तब हम देंगे, इसी तरह सिचुएशन में है, तो नरमी से उसे बता देना है। और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख, और ना उसे पूरी तरह से खोल दे कि फिर धिक्कड़ा हुआ और पछता हुआ बैठ जाए। यानी पूरा खुला, जितना था पूरा के पूरा खर्चा कर दिया ऐसा भी ना हो, फिर कुछ भी नहीं दिया ऐसा भी ना हो, यानी बैलेंस्ड, एक बैलेंस्ड वे में चलो। ये भी हम लोग जैसा लोगों के लिए है, क्योंकि कभी कभी होता है पूरा के पूरा जोश में आके खर्चा कर दिया, फिर खुद परेशानी में पड़े तो अफसोस होता है, अरे मैंने क्यों दिया, नहीं देता तो अच्छा होता। तो जिन लोगों का ऐसा हालत है उन लोगों के लिए है। लेकिन जिन लोगों ने खर्चा करने के बाद भूल जाते हैं, अगर खर्चा करने के बाद, सदका खैरात के बाद तकलीफ में पड़ गए तो भी अफसोस नहीं होता, तो वो तो कर सकता है। लेकिन जिन लोगों का खर्चा करने के बाद अगर तकलीफ में आ गए और अफसोस होता है, तो उन लोग ये बैलेंस वे में खर्चा करे। बेशक तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी का कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, बेशक वो अपने बंदों से बाखबर है, अच्छी तरह से देखने वाला है। यानी ये जो रिज्क का कमी बेशी, ये इसमें अल्लाह का हिकमत है। ऐसा ना समझा जाए जिसका कमी है, जो तकलीफ में है, वो अल्लाह का नापसंदीदा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। इसमें अल्लाह का कुछ हिकमत है, अल्लाह का कुछ हिकमत है। अल्लाह जिसे चाहे अपना हिसाब से, अपना हिकमत से देते हैं। तो कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए। अभी भी कुछ अच्छा नेक अमल का आयते हैं जो हमारा टीचर और बहन फरहात आगे पढ़ेगी।